ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تارا نے اپنے لمبے بالوں کو جوڑے کی صورت میں قید کیا تھا، مگر اس کے بال ایک بار پھر سے کھل گئے تھے۔ اس نے تھک کر اپنے گھنے بالوں کی سمت دیکھا اور ایک بار پھر سے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں کو جلدی جلدی لپیٹنے لگی تھی۔ اسے یونیورسٹی جانے کی دیری ہو رہی تھی، مگر اس کے بال تھے کہ بن ہی نہیں پا رہے تھے۔ وہ بری طرح سے جھنجلا گئی تھی۔ امی دیکھیں نا، پہلے ہی مجھے دیر ہو رہی ہے، اوپر سے یہ بال بند ہی نہیں رہے۔ تارا نے روحاں لہجے میں اپنی ماں کو آواز لگائی تھی اور تھک کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اسی وقت روشن بیگم کمرے میں آئی۔ انہوں نے مسکرا کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جو اس طرح سے ہر چھوٹی بات پر پریشان ہو جاتی تھی اور اسے اپنے سر پر سوار کر لیتی تھی۔ تارا، اس میں اتنی بڑی بات کون سی ہے جو تم اس طرح سے منہ بنا کر بیٹھ گئی؟ یہاں میرے پاس آؤ، میں تمہارے بالوں کی چوٹی بنا دیتی ہوں۔ روشن بیگم نے تارا کو پیار سے اپنے پاس بلاتے کہا اور خود صوفے پر بیٹھ گئی۔ تارا بیڈ سے اٹھ کر ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ روشن بیگم نے تارا کے بالوں کو سمیٹ کر لمبی چوٹی کی شکل میں باندھا۔ اتنی سی باتوں پر پریشان نہیں ہوتے، روشن بیگم نے دھیمے لہجے میں تارا کو سمجھایا۔ انہیں ہمیشہ سے ہی تارا کی اس عادت سے خوف آتا تھا، وہ یوں ہی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ تارا نے مسکرا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ جب آپ میرے پاس ہیں تو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ تارا نے اپنی ماں کو دیکھتے لاڈ سے کہا تھا۔ امی، آج میری یونیورسٹی میں فنکشن ہے تو مجھے تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ ویسے بھی میری یونیورسٹی کا آخری دن ہے تو میں اپنی فرینڈز کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ تارا نے روشن بیگم سے یونیورسٹی میں تھوڑی دیر تک رکنے کی اجازت طلب کی تھی۔ روشن بیگم نے ٹھنڈی سانس بھر کر تارا کو دیکھا۔ تارا، تم جانتی ہو نا، اگر تمہیں یونیورسٹی سے آنے میں تھوڑی بھی دیر ہو جائے تو تمہارے بابا پریشان ہو جاتے ہیں۔ روشن بیگم نے دھیرے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ امی، میں نے کل رات ہی بابا سے اجازت لے لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے بس مجھ سے کہا ہے کہ میں اپنا دھیان رکھوں اور دیر ہو جانے کی صورت میں انہیں لازمی کال کر دوں۔ اب پلیز آپ بھی مجھے اجازت دے دیں، تارا نے ضدی سے لہجے میں کہا۔ تارا بہت کم باتوں کے لیے ضد کرتی تھی، کیونکہ اسے ضد کرنی آتی ہی نہیں تھی۔ اگر اسے کسی کام سے منع کر دیا جاتا تو وہ خاموش ہو جاتی تھی اور دوبارہ نہیں کہتی تھی۔ لیکن اگر آج وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی تو روشن بیگم نے اس میں حرج نہیں سمجھا اور اسے اجازت دے دی۔ تارا خوشی خوشی تیار ہونے لگی۔ یونیورسٹی پہنچی تو فنکشن شروع ہونے میں کچھ ہی دیر تھی۔ سارے اسٹوڈنٹس آڈیٹوریم کی طرف جا رہے تھے۔ تارا اپنی دوستوں کے انتظار میں گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی دوستیں ابھی تک نہیں آئی تھیں۔ اب تو تارا یہاں کھڑی بور ہونے لگی۔ اس نے بھی آڈیٹوریم کی طرف جانے کے بارے میں سوچا اور اس طرف جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ آج یونیورسٹی میں معمول سے زیادہ رش تھا، کیونکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے علاوہ باہر کے لوگ بھی اس فنکشن میں شامل تھے۔ تارا بھی کچھ آگے ہی گئی تھی جب اسے اپنے لیے کسی کے منہ سے نازیبا الفاظ سنائی دیے۔ تارا کے قدم ٹھٹک کر رک گئے۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسلسل تارا پر جملے کس رہا تھا، اس کے لیے برے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ تارا نے اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہا، مگر وہ لڑکا جیسے اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ تارا کو بہت بری طرح گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے اپنے بیگ کو تھاما اور پھر ایک جھٹکے سے پیچھے پڑی۔ اگلے ہی پل تارا کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور سامنے والا شخص کے چہرے پر اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ ایک پل کے لیے جیسے وہاں سب کچھ رک گیا تھا۔ تارا نے ہمت کر کے یہ قدم تو اٹھا لیا تھا، مگر سامنے والے کی آنکھوں میں شرارے دیکھ کر اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ تارا نے اس کے برابر میں دیکھا جہاں وہ شخص ایک لڑکے کو کالر سے پکڑے کھڑا تھا۔ تارا کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ اس نے بغیر دیکھے، بغیر سوچے سمجھے غلط شخص پر ہاتھ اٹھایا تھا، جبکہ وہ شخص اپنی آنکھوں میں نفرت لیے تارا کو بری طرح گھور رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ تارا کو اپنی آنکھوں سے نگل لے۔
तारा के गले में गिल्टी सी उभर कर मालूम हुई। उसने बेख्तियार ही थूक निकला, जबकि वो लड़का उस शख्स के शिकंजे से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उस शख्स ने तारा से नजरें हटाकर एक जोरदार थप्पड़ उस लड़के के चेहरे पर मारा। गुस्से की शिद्दत से उस शख्स का चेहरा सुर्ख हो गया। वो लड़का अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया, जबकि तारा सुन सी खड़ी रह गई। इर्द गिर्द काफी स्टूडेंट्स जमा हो गए थे। हर कोई हैरानी से तारा और उस शख्स को देख रहा था। तारा फौरन ही वहां से पलटी और तकरीबन भागती हुई दरवाजे की सिमत बढ़ी। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। वो अनजाने में गलत शख्स पर हाथ उठा बैठी थी। उस रोज तारा को मालूम हुआ कि उसने जिस शख्स पर हाथ उठाया था वो शख्स उस रोज उनकी यूनिवर्सिटी में चीफ गेस्ट की हैसियत से मदऊ था। वो एक अमीर व कबीर बिजनेसमैन था। तारा को बेहद अफसोस हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास था। तारा की दोस्तों ने भी उसे समझाने की कोशिश की कि वो उस शख्स से जाकर माफ़ी मांग ले और उससे कह दे कि यह सब कुछ गलत फहमी के तहत हुआ है, मगर तारा अपनी डरपोक फितरत की वजह से ऐसा ना कर सकी। वो दोबारा उस शख्स का सामना नहीं करना चाहती थी। वो उसकी खून छलकाती नजरों के सामने नहीं आना चाहती थी। नहीं, मैं उस शख्स के सामने दोबारा नहीं जाना चाहती। वो इंतहाई गुस्से और नफरत से मुझे घूर रहा था। तारा ने सहमे हुए लहजे में जवाब दिया, तारा, ऐसा नहीं होता। तुम्हें लाजमी उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो शख्स कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तुम्हारी इस हरकत की वजह से उसकी साख को बहुत नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जिस वक्त तुमने उस पर हाथ उठाया वहां तुम लोगों के अलावा भी बहुत से स्टूडेंट्स मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से यह मंजर देखा था। अगर तुम उस शख्स से माफ़ी नहीं मांगोगी तो सबको यही लगेगा कि वही शख्स तुम्हें तंग कर रहा था, जबकि हकीकत में वो तुम्हें बचाने के लिए आया था। तारा की दोस्त ने नरमी से उसे समझाते हुए उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया, जबकि तारा अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए बैठी थी। मैं उस शख्स के सामने दोबारा नहीं जाना चाहती। मैं जानती हूं मैंने गलत किया है, मगर वो शख्स मुझे जिस कदर नफरत से घूर रहा था, मैं अब कभी उसकी नजरों का सामना नहीं करना चाहती। तारा ने अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए कहा था। तारा की दोस्त ने एक ठंडी सांस भरकर उसे देखा। तारा को समझाना बहुत मुश्किल था। तारा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे साथ चलो और अभी इस बात को खत्म कर दो। तारा की दोस्त ने उसे जबरदस्ती उठाते हुए कहा और उसे लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ी, क्योंकि फंक्शन खत्म होने के बाद चीफ गेस्ट वहीं बैठे हुए थे। वहां जाकर उन दोनों को मालूम हुआ कि सुल्तान शमशीर अभी कुछ देर पहले ही यूनिवर्सिटी से निकल गए हैं। तारा ने बेइख्तियार सुकून की सांस भरी। वो उस शख्स का सामना करने से बच गई थी जो उसे अपनी आंखों से ही निगलने को बेताब था। तारा घर आकर इस मामले को भूल गई थी। उसके जहन से वो शख्स बिल्कुल महव हो गया था, मगर सुल्तान शमशीर के जहन से तारा कभी महव ना हो सकती थी। सुल्तान शमशीर एक जाना माना बिजनेसमैन था, जिस पर आज एक लड़की ने सबके सामने हाथ उठाया था और उसकी इज्जत को दो कौड़ी का किया था। सुल्तान शमशीर की नज़रों के सामने बार बार वो मंजर घूम रहा था जब उस लड़की ने इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। वो यूनिवर्सिटी से सीधा अपने जिम चलाया। ट्रेडमिल पर भागते हुए उसने अपने गुस्से को काबू में करने की कोशिश की, मगर लम्हा लम्हा उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखें गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो गई। 2 घंटे तक लगातार वो वर्जिश करता रहा, मगर फिर भी उसका गुस्सा किसी भी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सुल्तान शमशीर ने कुर्सी पर बैठते ठंडे पानी की बोतल मुंह से लगाई और एक ही घूंट में सारी बोतल खाली कर गया, और फिर उसने पूरी कुव्वत से सामने वाले शीशे पर हाथ मारा। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और अपने ख़ास आदमी को फ़ोन किया। सुल्तान शमशीर ने उससे उस लड़की को तलाश करने को कहा था जिसने उस पर हाथ उठाया था, क्योंकि जिस वक्त तारा ने सुल्तान पर हाथ उठाया था वहां उसका ख़ास आदमी भी मौजूद था। सुल्तान शमशीर ने उस लड़की के बारे में सारी मालूमात निकालने का हुक्म दे दिया था और फिर अपना फ़ोन एक जानिब फेंका। उसका बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दे। उसने सुर्ख नज़रों से सामने नजर आते आईने में खुद को देखा। पसीने से उसका पूरा वजूद तर था। सर से पानी की मानिंद पसीना गिर रहा था।
मगर अब भी उसके जलते दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। उस लड़की ने सुल्तान शमशीर पर हाथ उठाया था, वो इतनी हिम्मत कैसे कर सकती थी? सुल्तान को अब तक यकीन नहीं आ रहा था। वो गर्मियों की एक तपती हुई दोपहर थी। फराज साहब आज जरा जल्दी ऑफिस से घर आ गए थे और अब अपने कमरे में आराम कर रहे थे, जबकि रोशन बेगम भी कमरे में मौजूद थी और तारा वहीं सोफे पर बैठी किसी रिसाले की वर्कगर्दानी कर रही थी। घर के सभी मकीन एक ही कमरे में मौजूद थे। ऐसे में बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी गर्मी और दोपहर में कौन आ सकता है? तारा कुछ बेजार सी होकर अपनी जगह से उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए सहन की तरफ आई, जबकि फराज साहब और रोशन बेगम वहीं बैठे सोच रहे थे कि इस वक्त कौन हो सकता है। तारा ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। उसने हैरानी से पुलिस को देखा। फराज साहब का यही घर है? एक पुलिस वाले ने तारा से सख्त लहजे में सवाल किया। तारा पुलिस वालों को अपने घर देखकर बुरी तरह घबरा गई। फराज साहब भी आवाज़ें सुनकर बाहर सहन में आ गए थे। तारा उन्हें देखकर फौरन उनकी पीठ के पीछे छुप गई थी। जी मैं ही हूं फराज, आपको क्या काम है? फराज साहब ने नासमझी से पुलिस वालों की तरफ देखकर कहा, आपको अरेस्ट करने के वारंट है हमारे पास। आपको अभी इसी वक्त हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक पुलिस वाले ने आगे बढ़कर फराज साहब के हाथ हथकड़ियों में जकड़ते हुए कहा। रोशन बेगम और तारा दोनों बुरी तरह घबरा गई थी। आप लोग मुझे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? मेरा जुर्म तो बताइए, फराज साहब ने पुलिस वालों से पूछा। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के मालिक ने आपके खिलाफ रिश्वत लेने की रिपोर्ट लिखवाई थी। आप लोगों से उनके काम के बदले रिश्वत लेते हैं। रिश्वतखोर होकर हमसे सवाल करते हैं कि क्या किया है? पुलिस वाला इस्तेहज़ाइया हंसा था। पुलिस वाले ने फराज साहब को पुलिस की वैन की जानिब धकेला। पुलिस वाले की जबान से अपने लिए रिश्वतखोर का लफ्ज सुनकर फराज साहब के पैरों तले से जमीन निकली थी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी थी, कभी हराम का एक पैसा नहीं लिया था, और अब इस उम्र में आकर उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया। उन्हें अपनी सारी जिंदगी की नेक नामी खतरे में पड़ती महसूस हो रही थी। उन्होंने पलटकर अपनी बीवी और बेटी की तरफ देखा, जो खौफ व हरास से उनकी तरफ देख रही थी। वो उन्हें तसल्ली के दो बोल कहना चाहते थे, उन्हें तसल्ली देना चाहते थे, मगर पुलिस वाले फराज साहब को धकेलते हुए गाड़ी की तरफ लेकर जा रहे थे, जबकि तारा अपनी मां से लिपटी खड़ी थी। मोहल्ले के सब लोग अपने घरों से झांक कर ये मंजर देख रहे थे, मगर कोई भी फराज साहब को छुड़ाने के लिए आगे नहीं बढ़ा था। कोई भी पुलिस के मामले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए सभी लोग खामोशी से ये तमाशा देखते रहे। पुलिस वाले फराज साहब को ले जा चुके थे, जबकि रोशन बेगम और तारा बेयकीनी से उन्हें जाता देखती रही। फराज साहब ही इस घर के वाहिद मर्द थे, उनके सिवा इस घर में कोई मर्द नहीं था। दो अकेली औरतें क्या कर सकती थीं? रोशन बेगम ने मदद के लिए अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया था, मगर इस मुश्किल वक्त में सबने उनसे निगाहें फेर ली थी। जिसने भी सुना उसने यही कहा कि फराज साहब को रिश्वत लेने की क्या ज़रूरत थी। रोशन बेगम सबसे कह रही थी कि मेरे शौहर ऐसे नहीं हैं, उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है, मगर कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सभी फराज साहब को मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहे थे। ऐसे ही सब रिश्तेदारों ने अपनी आंखें फेर ली। तारा और रोशन बेगम का कोई पुरसाने हाल नहीं था, वो दोनों बिल्कुल तन्हा रह गई थी। रिश्तेदारों से मायूस होकर रोशन बेगम मोहल्ले वालों से मदद मांगने गई, मगर कोई भी थाने कचहरी के चक्कर लगाने को तैयार नहीं था। हर कोई अपना पहलू बचा रहा था। रोशन बेगम और तारा ही अब दोनों एक दूसरे का सहारा थी। फराज साहब एक हफ्ता हुआ जेल में थे। वो दोनों एक बार भी उनसे ना मिल सकी थी। अकेली औरतें इस सब के बारे में कुछ नहीं जानती थी। आखिरकार वो दोनों हिम्मत करके खुद ही फराज साहब से मिलने के लिए थाने पहुंची। रोशन बेगम तो तारा को बिल्कुल ले जाना नहीं चाहती थी, मगर तारा अपने बाप से मिलने के लिए तड़प रही थी। वो भी जाने को तैयार हो गई। वो दोनों रिक्शे में बैठकर थाने पहुंची और कुछ देर बाद बड़ी मिन्नतों और तरलों के बाद उन्हें फराज साहब से मिलने की इजाज़त दी गई। अपने बाप को जेल की सलाखों के पीछे देखकर
तारा का दिल हलक में आ गया। वो तड़प कर अपने बाप की जानिब बढ़ी। फराज साहब भी उन दोनों को वहां देखकर हैरान थे। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तारा ज़ारो कतार रो रही थी, जबकि रोशन बेगम बामुश्किल हिम्मत किए वहां खड़ी थी। वो अपने शौहर को इस हालत में नहीं देख सकती थी। एक हफ्ते में ही फराज साहब बिल्कुल कमजोर हो गए थे। बाबा, मैं जानती हूं आपने कुछ नहीं किया। आप यकीन करें, हम लोग बहुत जल्द आपको यहां से निकाल लेंगे। तारा ने फराज साहब के हाथ थामते हुए तसल्ली दी, जबकि फराज साहब अपना सर झुका गए, क्योंकि वो जान गए थे कि अब उनका यहां से निकलना मुमकिन नहीं है। सारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ छोड़ गए थे, और वो दोनों अकेली औरतें क्या कर सकती थीं? जो उम्मीदी और मायूसी फराज साहब के चेहरे से झलक रही थी। कुछ देर बाद मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। तारा और रोशन बेगम भारी दिल के साथ वहां से वापस आ गई। फराज साहब से मुलाकात करने के बाद तारा घर आकर बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। वो कितनी ही देर तक कुछ बोल भी ना सकी थी, बस टुकर टुकर घर की दीवारों को देख रही थी। एक हफ्ते से उनका घर बिल्कुल सूना और वीरान पड़ा था। दोनों जरा सी आहट पर बुरी तरह चौंक जाती थी, यूं जैसे उनके सर से सायबान हटा दिया गया हो और वो दोनों तपती धूप तले आ गई हों। उनकी जिंदगी एक जगह रुक सी गई थी। आगे बढ़ने का कोई आसरा नजर नहीं आ रहा था। तारा ने फराज साहब के बॉस से बात करने की कोशिश की थी। उसने उनके ऑफिस का फोन मिलाया, मगर उसके बॉस ने बात करने से इनकार कर दिया। बहुत सोचने के बाद तारा को एक ही हल नजर आया कि जिस शख्स ने फराज साहब को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है, अब वही शख्स उन्हें वहां से निकाल सकता है। इसलिए उसने फराज साहब के बॉस से बात करने के लिए उनके ऑफिस में फोन किया था, मगर उसकी बात ना हो सकी थी। तारा कुछ रोज तक मुसलसल उनके बॉस से बात करने के लिए फोन करती रही, मगर नाकाम ठहरी। इसलिए मजबूर होकर उसने ऑफिस जाने का फैसला किया। वो नहीं जानती थी कि ऑफिस में फराज साहब के बॉस उसे मिलेंगे या नहीं, मगर एक उम्मीद के तहत वो वहां जाना चाहती थी। तारा आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। रोशन बेगम ने दिल महसूस कर तारा को देखा। तारा, वो बड़े लोग हैं, कभी भी तुझसे नहीं मिलेंगे। रोशन बेगम ने तारा को समझाने की कोशिश की। तारा ने मायूस नजरों से अपनी मां की तरफ देखा। अम्मी, मैं बाबा को बाहर निकालने की एक कोशिश करना चाहती हूँ। हम लोग कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें बाबा को जेल की सलाखों के पीछे से निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तारा ने रोंदे हुए लहजे में कहा था। तारा ने अपने बाप के बगैर खुद को इस वक्त बेइंतहा बेबस महसूस किया था। वो घर से निकल खड़ी हुई। कुछ देर बाद वो उस ऑफिस के बाहर मौजूद थी जहां उसके बाबा जॉब करते थे। तारा खुद को हिम्मत जमा करती अंदर की जाने बढ़ी और रिसेप्शन पर बैठी लड़की को मुखातिब किया। उस लड़की ने सवालिया नजरों से तारा की तरफ देखा। तारा ने उससे अपना तारुफ करवाया और कहा कि वो इस कंपनी के मालिक से मिलना चाहती है। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने किसी को फोन मिलाया। दूसरी जानिब से चंद हिदायत मिलकर फोन रख दिया गया। आपको इंतजार करना पड़ेगा, बॉस अभी मीटिंग में है। उस लड़की ने अपने चेहरे पर पेशावराना मुस्कुराहट सजाते तारा से कहा। तारा सर हिलाती सामने रखे सोफों में से एक पर बैठ गई। उसे इंतजार करते काफी देर गुजर चुकी थी, मगर अभी तक उसे बुलाया नहीं गया था। यहां तक कि अब 4 घंटे गुजर गए थे। तारा ने 1-2 बार जाकर कहा भी था, मगर उसकी बात का कोई नोटिस नहीं लिया गया। यहां तक कि उसे सुबह से बैठे शाम होने को आई। वो घर से कुछ भी खाए बगैर निकली थी। रोशन बेगम के कई फोन आ चुके थे। वो मुसलसल उसे घर आने को कह रही थी, मगर तारा का यही कहना था कि वो फराज साहब के बॉस से मिले बगैर घर नहीं आएगी। आखिरकार 7 घंटों बाद कहीं जाकर रिसेप्शन पर बैठी लड़की को उस पर तरस आया। उसने तारा को सामने बने कॉरिडोर की तरफ इशारा किया और उसे बॉस के कमरे का रास्ता बता दिया। तारा अपनी जगह से उठी तो यकदम उसका सर चकराया, मगर वो खुद को थाम कर आगे बढ़ी। वो ऑफिस रूम का दरवाजा नॉक करके अंदर दाखिल हुई थी कि सामने बैठे शख्स सुल्तान शमशीर को देखकर वो सांस लेना भूल गई। वो हैरत से आंखें फाड़े उस शख्स को देख रही थी जिस शख्स पर उसने कुछ दिन पहले हाथ उठाया था।
आज वही शख्स उसके सामने कांच की बड़ी मेज के पीछे बैठा था। उसी वक्त सुल्तान शमशीर ने भी सर उठाकर तारा की तरफ देखा। एक पल के लिए दोनों की नजरें टकराई थीं। तारा की आंखों में हैरत और बेयकीनी थी, तो सुल्तान शमशीर की आंखों में गुस्सा और नफरत थी। तारा को लगा जैसे ऑफिस की दीवारें सिमटती जा रही हैं और उसी की सिमत बढ़ रही हैं। उसने घबराकर इर्द गिर्द देखा। सुल्तान शमशीर ऑफिस चेयर से टेक लगाए इत्मीनान से बैठा उसे देख रहा था। पल पल उसके चेहरे के बदलते तासुरात को नोट कर रहा था और शायद इस मंजर से लुत्फ भी उठा रहा था। तारा का दिल किया वो वहीं से वापस चली जाए और फिर कभी उस शख्स के सामने ना आए, मगर यही सवाल उसके जान से अजीज बाप का था और उसकी जिंदगी का था। वो कैसे फरार हो सकती थी? उसे सारी सूरत हाल का सामना करना ही था। तारा ने बेख्तियार थूक निकला और खुद में हिम्मत जमा करती ऑफिस का दरवाज़ा छोड़ा। छोटे छोटे कदम उठाती सुल्तान शमशीर के सामने पहुंची, जो सर्द नज़रों से उसे ही देख रहा था। तारा की नज़रें खुद ब खुद झुक गई थीं। तारा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सुल्तान शमशीर की नज़रें उसके वजूद के आर पार हो रही हों। तारा ने गहरी सांस भरकर खुद को पुरसकून करने की कोशिश की। सुल्तान ने तारा को बैठने का नहीं कहा था। कुछ देर तक उन दोनों के दरमियान गंभीर खामोशी छाई रही। आखिरकार उस खामोशी को सुल्तान की आवाज ने तोड़ा। यकीनन तुम यहां मुझसे अपने किए की माफी मांगने तो नहीं आई? सुल्तान शमशीर का लहजा इस्तेज़ा से भरपूर था। तारा की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बाबा आपके ऑफिस में काम करते थे, तारा ने बमुश्किल इतना ही कहा था। आंसू उसके हलक में अटक से गए। सुल्तान ने बेजार नजरों से उसकी तरफ देखा। मुझे ये रोने धोने वाली लड़कियां हरगिज पसंद नहीं। मुझसे जो भी बात करने के लिए तुमने 7 घंटे इंतजार किया है वो जल्दी करो, वरना यहां से दफा हो जाओ। सुल्तान शमशीर ने इंतहाई हद तक से तारा को मुखातिब करके कहा। तारा का दिल किया जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया, प्लीज आप उन्हें छोड़ दें, वो बेकसूर हैं। उन्हें झूठे इल्जाम में जेल में बंद किया गया है, वो कभी भी रिश्वत नहीं ले सकते। तारा ने भीगे हुए लहजे में अपने बाबा की रिहाई के लिए सुल्तान शमशीर की मिन्नत की थी। सुल्तान शमशीर ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और अपना हाथ में पकड़ा हुआ पेन वहीं टेबल पर रखा। ये बात तो मैं जानता हूं कि तुम्हारा बाप बेकसूर है। सुल्तान ने इंतहाई इत्मीनान से तारा के पैरों तले से जमीन खींची। तारा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, यूं जैसे उसे सुल्तान की बात समझ ही ना आई हो। वो मुंह खोले हैरानी से उसे देख रही थी। तो आप मेरे बाबा को जेल से निकलवा दें? तारा ने रोंदे हुए लहजे में एक बार फिर उसकी मिन्नत की। सुल्तान शमशीर इत्मीनान से अपनी जगह से उठा और तारा के सामने आकर खड़ा हुआ। तारा ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूं तुम्हारा बाप मुजरिम नहीं है, वो बेकसूर है। सुल्तान ने अपनी बात अधूरी छोड़कर तारा की सिमत देखा। लेकिन तुम्हारे बाप को तुम्हारे किए की सजा मिली है। तुम क्या समझ रही थी कि तुम मुझ पर सबके सामने हाथ उठाओगी और मैं इस बात को भूल जाऊंगा? सुल्तान शमशीर ने सर्द लहजे में उससे कहा, आप पर मैंने हाथ उठाया था तो मुझे ही सजा देते। इन सब में मेरे बाबा को घसीटने की क्या जरूरत थी? वो तो बेकसूर थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी से आपके ऑफिस में काम करते गुजार दी और आपने उनको इस बात का ये सिला दिया। तारा की आंखों से आंसू टपकने लगे, मगर सुल्तान पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, मेरे बाबा को जेल से निकाल दें, वरना वो मर जाएंगे। इस बात के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। तारा उस पत्थर दिल शख्स के सामने हाथ जोड़े फूट फूट कर रोई थी। सुल्तान शमशीर ने अपने सामने खड़ी उस बेबस लड़की को देखा, जो अपने बाप की खातिर उसके सामने खड़ी मिन्नतें कर रही थी। ठीक है, तुम्हारा बाप जेल से बाहर आ सकता है, मगर उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए किसी चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है। सुल्तान शमशीर ने इंतहाई इत्मीनान से अपने सीने पर हाथ बांधते कहा। तारा ने आंसू भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, मगर
اس کا لہجہ ایک الگ ہی کہانی بیان کر رہا تھا۔ اگر تم 3 دن کے لیے مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہو جاؤ اور اپنا وجود مجھے خوشی سے سونپ دو تو میں تمہارے باپ کو باعزت جیل سے نکلوا سکتا ہوں۔ سلطان شمشیر نے تارا کے چہرے کی طرف دیکھتے گھمبیر لہجے میں کہا، مگر اس کے لفظوں کی ٹھنڈک تارا کو اپنے وجود میں اترتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی جگہ پتھر کی ہوئی، یہاں تک کہ وہ پلکیں جھپکانا بھی بھول گئی۔ وہ بس حیرانی سے یک تک سلطان شمشیر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ تارا کے منہ سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پاس الفاظ بھی ختم ہو گئے ہوں۔ وہ رونا تک بھول گئی تھی، آنسو اس کی پلکوں کی باڑ پر آ کر اٹک گئے تھے۔ سلطان شمشیر نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے نکاح کرنے پر راضی نہیں ہو تو کوئی بات نہیں۔ میں تو نکاح کا تمہاری خاطر کہہ رہا تھا، مجھے تو ویسے ہی تمہیں حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ بس تم 3-4 دن میرے ساتھ رہو، میں تمہارے باپ کو جیل سے آزاد کرا دوں گا۔ سلطان شمشیر کی ڈھٹائی اور اس کا اطمینان عروج پر تھا، جبکہ تارا کے جسم کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا۔ ایک شخص اس کے سامنے کھڑا کس قدر بے باکی سے اسے حاصل کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ تارا کا دل کیا وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کا گلا دبا دے، مگر وہ مجبور تھی اور اسی مجبوری کا وہ شخص فائدہ اٹھا رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تارا نے جیسے خود کلامی کی۔ ٹھیک ہے، اگر تم اس سب کے لیے راضی نہیں تو واپس اپنے گھر چلی جاؤ اور اپنے باپ کو بھول جاؤ۔ وہ ساری زندگی بے قصور ہوتے ہوئے بھی تمہاری وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑے گا، سلطان نے سفاکیت سے کہا تھا۔ تارا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ ایک جانب اس کا باپ تھا تو دوسری جانب اس کی پوری زندگی پڑی تھی۔ وہ کیسے اس ظالم شخص کو اپنا وجود سونپ سکتی تھی؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، سلطان شمشیر نے اسے گہری سوچ میں غرق دیکھ کر کہا، اور پھر ایک بیٹی کی محبت جیت گئی تھی۔ میں راضی ہوں، تارا نے سر جھکائے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، جبکہ تارا نے اذیت سے اپنی آنکھیں میچی۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا ہرگز بھی آسان نہیں تھا، مگر وہ اپنی وجہ سے اپنے باپ کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد سلطان شمشیر کے نکاح میں تارا تھی۔ سلطان شمشیر مسکراتا کمرے میں داخل ہوا۔ اسی لمحے تارا کا فون بجا۔ اسکرین پر روشن بیگم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ تارا، رات ہونے کو آئی ہو، تم کہاں رہ گئی؟ گھر واپس آ جاؤ، میرا دل بری طرح گھبرا رہا ہے۔ روشن بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز فون کے اسپیکر میں سے ابھری تھی۔ تارا نے سر اٹھا کر سلطان شمشیر کی طرف دیکھا۔ امی، میں بابا کو لے کر کچھ دیر میں گھر آ رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، تارا نے سپاٹ لہجے میں ان سے کہا اور فون بند کر کے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ سلطان شمشیر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ وہ تارا کے قریب آیا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ مجھے نکاح کی مبارکباد بھی تو دینے دو۔ سلطان نے اس کی جانب جھکتے سرگوشی سے کی۔ تارا نے آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ پہلے میرے بابا جیل سے باہر آئیں گے، تارا نے سپاٹ لہجے میں سلطان سے کہا۔ سلطان نے اس کی آنکھوں میں ضد دیکھ لی تھی، اسی لیے وہ اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے کمرے سے نکل گیا۔ سلطان شمشیر نے فراز صاحب کے خلاف کی گئی شکایت واپس لے لی۔ فراز صاحب سلطان شمشیر کے ساتھ تارا کو دیکھ کر ٹھٹک سے گئے تھے۔ وہ تارا کی یہاں موجودگی کی توقع بالکل نہیں کر رہے تھے۔ سلطان شمشیر خود انہیں گھر چھوڑنے آیا، جبکہ تارا سارے راستے گم سم رہی۔ گھر آ کر بھی وہ صوفے پر خاموشی سے بیٹھی بس فراز صاحب کو تک رہی تھی، جبکہ فراز صاحب اور روشن بیگم سلطان کی آؤ بھگت کرنے میں مصروف تھے۔ وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ ان کی بیٹی سلطان سے نکاح کر چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، سلطان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، جبکہ تارا بھی ایک ٹرانس کی کیفیت میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس سارے وقت میں تارا نے پہلی بار سلطان شمشیر کی طرف دیکھا تھا اور پھر اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا، میں سلطان شمشیر سے نکاح کر چکی ہوں، مجھے ان کے ساتھ جانا ہوگا، تارا نے فراز صاحب کی طرف دیکھتے
टूटे हुए लहजे में कहा। फराज साहब और रोशन बेगम दोनों ने ही हैरानी से उसकी तरफ देखा। उन दोनों को ही तारा की बात समझ नहीं आई थी, और फिर जब उन्हें तारा की बात का मतलब समझ आया तो वो दोनों जैसे सकते की हालत से बाहर निकले। तारा, ये तुम क्या कह रही हो? फराज साहब के सर पर हैरतों का पहाड़ टूटा था, जबकि सुल्तान ने दिलचस्पी से तारा को देखा। मैं सच कह रही हूं, आपकी रिहाई के बदले में इस शख्स से अपने वजूद का सौदा कर चुकी हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको मेरी गलती की सजा भुगतनी पड़े। तारा ने बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल की और बुरी तरह से रोने लगी। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इन सब में तुम्हारी क्या गलती? फराज साहब जैसे तड़प से गए थे। बाबा, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैंने ही सुल्तान शमशीर को थप्पड़ मारा था, जिसका बदला इन्होंने इस तरह से ले लिया। तारा ने सुर्ख नजरों से सुल्तान शमशीर की तरफ देखते हुए कहा। फराज साहब ने हैरानी से सुल्तान शमशीर की तरफ देखा। सर, ये क्या कह रही है? आप मेरी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फराज साहब तकरीबन चीख पड़े थे। आवाज नीची करके बात करें फराज साहब। आपकी बेटी अपनी मर्जी से मेरे साथ निकाह करने पर राजी हुई है, सुल्तान ने नागवारी से कहा। तारा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुमने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया। रोशन बेगम ने आगे बढ़कर तारा के चेहरे पर थप्पड़ मारा। तारा गिरती उससे पहले ही सुल्तान ने आगे बढ़कर तारा को थामा। मुझे माफ कर दें बाबा। बाबा को जेल से लाने का इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। तारा ने रोते हुए उन दोनों के सामने हाथ जोड़ दिए। फराज साहब ने खुद को उस वक्त बेहद बेबस महसूस किया था। वो यकदम जैसे ढह से गए थे। तारा, मुझे देर हो रही है। मैं बाहर गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, जल्दी बाहर आओ। सुल्तान ने दुरुस्त लहजे में तारा को हुक्म दिया और खुद बाहर गाड़ी में बैठ गया। तारा ने बेबसी से अपने माँ बाप की तरफ देखा, जो अनजान नजरों से उसे ही देख रहे थे। उनकी नजरें देखकर तारा को अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। बाबा, मुझे जाना होगा, तारा ने फराज साहब के सीने से लगते हुए कहा और फिर रोशन बेगम के सीने से लगी, मगर वो दोनों ही अपनी जगह साकित खड़े रहे। तारा ने एक नजर उन दोनों को देखा और फिर घर की दहलीज पार कर गई। सारे रास्ते उन दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही थी। तारा की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, जिन्हें वो साफ तक नहीं कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने आंसुओं से खुद भी अनजान हो। सुल्तान ने ड्राइविंग करते एक नजर तारा पर डाली। तारा की नजरें शीशे के पार भागते दौड़ते मनाजिर पर टिकी हुई थी। वो शायद इस वक्त सुल्तान की मौजूदगी को भी नजरअंदाज कर देना चाहती थी, बल्कि हकीकत तो ये थी कि वो अपने ही वजूद से फरार हासिल करना चाहती थी। तारा टेरेस पर बिल्कुल तन्हा बैठी थी। उसकी आंखों की जोत बुझ गई थी। वो खाली खाली नजरों से आसमान की सिमत देख रही थी। उसे यहां आए 3 दिन मुकम्मल हो गए थे। वो अपने घर जाना चाहती थी, अपने माँ बाप के पास जाना चाहती थी, उनके सीने से लगकर खूब रोना चाहती थी। अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। सुल्तान शमशीर ने उसे अपना हक वसूल कर लिया था। वो इन 3 दिनों में एक लम्हे के लिए भी ना सो सकी। मुसलसल जागने की वजह से उसकी आंखें सूज कर सुर्ख हो गई थीं। उसने इन 3 दिनों में बमुश्किल चंद ही नवाले खाए होंगे। सुल्तान भी उसकी यह हालत देख रहा था, मगर बिल्कुल खामोश था। सुल्तान कुछ देर पहले ही ऑफिस से घर आया था। वो घर आते ही सीधा अपने कमरे में आया, मगर तारा उसे कहीं दिखाई नहीं दी। इसीलिए वो दौड़ता हुआ टेरेस पर आया। टेरेस पर तारा गुमसुम बैठी थी। सुल्तान उसके बराबर में बैठ गया। तारा ने नजरें उठाकर सुल्तान की तरफ देखा। मुझे यहां आए 3 दिन हो चुके हैं। अब मुझे अपने घर जाना है। मैं आपकी शर्त पूरी कर चुकी हूं। आप मुझे हासिल कर चुके हैं। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बस अब मैं यहां से जाना चाहती हूं। अगर मैं कुछ पल और मजीद यहां रही तो मैं मर जाऊंगी। तारा की दबी दबी सिसकियां वहां गूंजने लगी थी। सुल्तान ने ठंडी सांस भरकर
अपने दिल को टटोला था। तारा के मुंह से उसके जाने का सुनकर इसके दिल को कुछ हुआ, मगर वो भी 3 दिन से तारा की हालत देख रहा था और ये बात सच थी कि अगर तारा मजीद यहां रहती तो वाकई मर जाती। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूं, सुल्तान ने तारा पर से नजरें हटाए बगैर कहा। तारा ने सर उठाकर सुल्तान की तरफ देखा। तारा को यकीन नहीं आया कि सुल्तान इतने आराम से उसे वापस भेजने पर राजी हो गया है। मुझे आप तलाक के पेपर्स भिजवा दीजिएगा, मैं अब मजीद इस रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकती, तारा ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा और अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। मगर वो जाते जाते रुकी थी। उसने पलटकर नम नजरों से सुल्तान की तरफ देखा। उस रोज मैंने आप पर नहीं बल्कि उस लड़के पर हाथ उठाया था जो मुझे छेड़ रहा था, मेरे बारे में घटिया जबान इस्तेमाल कर रहा था, और इत्तेफाक से आप उसी वक्त बीच में आ गए। वो थप्पड़ आपको लग गया। आप ये भी बात अच्छे से जानते हैं कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। वो थप्पड़ आपके लिए नहीं था, मुझसे गलती हुई थी। मैं बुरी तरह से डर गई थी, आपके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, मगर फिर भी मैं हिम्मत करके माफ़ी मांगने के लिए आई थी, मगर आप जा चुके थे। मुझे तो आपका नाम तक मालूम नहीं था, मैं कैसे आपसे माफ़ी मांगती, मगर आपने मेरी एक गलती के बदले मुझे और मेरे घर वालों को बर्बाद कर लिया। इससे तो बेहतर यह हुआ था कि आप मुझे जान से मार देते, कम से कम मुझे ये अजियत तो ना सहनी पड़ती। तारा का लहजा उनके अंदर होने वाली टूट फूट का गमाज था। सुल्तान के दिल को यकदम कुछ हुआ। उसे लगा एक बार फिर से भरे बाजार में उसकी बेइज्जती हो गई हो। सुल्तान ने उस लम्हे खुद को बेहद छोटा महसूस किया। मैं कमजोर हूं, मैं आपका कुछ नहीं कर सकती, आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर आप तो इतने ताकतवर हैं कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला सकती। आप बताएं, मैं अपने बाबा से क्या कहूंगी? इस शख्स के साथ मेरा 3 रातों का सौदा हुआ था। तारा का सांस फूल सा गया और सुल्तान शमशीर सांस लेना भी भूल गया। हकीकत के आईने में अपना करीह चेहरा देखकर वो एक पल के लिए खौफजदा सा हो गया था। अगर आप इस वाक़ये को भूल जाते तो क्या हो जाता? मेरी जिंदगी तो इस तरह से बर्बाद ना होती। मैं तो खुद से भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूं। मुझे खुद से, अपने वजूद से नफरत होने लगी है, तारा ने तल्खी से मुस्कुराते हुए कहा। सुल्तान का वजूद मजीद जमीन में गड़ सा गया। आप मुझे ड्राइवर के साथ मेरे घर भिजवा दें, मैं अब इससे ज्यादा अपनी जिंदगी में आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तारा ने एक आखिरी नजर उसके झुके हुए सर पर डाली और टेरेस से निकलकर कमरे में आ गई थी। वो मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो सुल्तान उसी के इंतजार में खड़ा था। मैं तुम्हें छोड़ाता हूं, सुल्तान ने उसे नजरें मिलाए बगैर कहा और कमरे से निकल गया, जबकि तारा भी ठंडी सांस भरते हुए कमरे से निकली। कुछ देर बाद वो अपने बाबा के घर मौजूद थी। वो खामोशी से कुछ भी कहे बगैर गाड़ी से उतर गई थी। उसने एक भी बार पलटकर सुल्तान शमशीर की तरफ नहीं देखा था और दहलीज पार करके अंदर चली गई थी। सुल्तान जाने कितनी ही देर वहां खड़ा रहा और फिर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो जानता था कि तारा उसे पलटकर नहीं देखेगी, वो उससे नफरत करती है, मगर वो अपने दिल का क्या करता जो उससे मोहब्बत करने लगा था। सुल्तान को रह रहकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने गुस्से में आकर एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। उसे हरगिज भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुल्तान तारा को छोड़कर घर वापस आ गया था और एक बार फिर वो टेरेस पर आकर बैठ गया था। तारा फराज साहब के सीने से लगकर बेतहाशा रोई थी। बाबा मुझे माफ कर दे, इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मैं मजबूर हो गई थी, तारा ने बेतहाशा रोते हुए कहा। फराज साहब ने तारा को सख्ती से खुद में भेजा। उनकी तारा में जान बसती थी, वो उससे कैसे दूर रह सकते थे। वो तीनों एक दूसरे से लिपट कर रो दिए
उनकी जिंदगी में एक तूफान आकर गुजर गया था, मगर अब सब कुछ पहले जैसा कभी नहीं हो सकता था। तारा की रूह उदास हो गई थी। तारा को यहां आए काफी दिन गुजर गए थे, मगर सुल्तान ने अब तक उसे तलाक के पेपर नहीं भेजे थे। तारा ने तंग आकर सुल्तान को फोन किया कि वो जितनी जल्दी हो सके खुद को इस रिश्ते से आजाद करवाना चाहती थी। वो खुद को सुल्तान शमशीर के नाम से आजाद करना चाहती थी। दूसरी जानिब पहली ही बेल पर फोन उठा लिया गया। आपने मुझे अब तक तलाक के पेपर्स क्यों नहीं भेजे? तारा ने सीधा सवाल किया। क्योंकि मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता, सुल्तान ने मसरूफ से लहजे में तारा से कहा। यह आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा था आप 3 दिन के लिए निकाह कर रहे हैं और अब आप अपनी बात से पीछे हट रहे हैं। क्यों मुझे तलाक नहीं देना चाहते? तारा ने बिगड़े हुए लहजे में सवाल किया। क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं और तुम्हारे बगैर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सुल्तान ने सारी फाइल्स इकट्ठी की थी। तारा ने सबसे अपनी मुट्ठियां भेज ली। क्या आप मुझे तलाक देने के लिए भी रुस्वा करना चाहते हैं? तारा ने भीगे हुए लहजे में सवाल किया। अब मैं तुम्हारी जबान से तलाक का लफ्ज ना सुनूं। लगता है अब तुम्हारा दिल भर गया है। मैं तुम्हें रात को लेने आऊंगा, सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा और फोन बंद कर दिया। तारा ने गुस्से से फोन की तरफ देखा और फोन बेड पर पटक दिया। सुल्तान तारा के सामने बैठा हुआ था, जबकि तारा उसे घूर रही थी। फराज साहब, मैं जानता हूं मेरी गलती है। मैं गुस्से में अंधा हो गया था। मुझे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था, मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तारा के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। इसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं तारा को बहुत खुश रखूंगा। सुल्तान ने तारा को नजरअंदाज करके फराज साहब से बात की थी। फराज साहब तारा पर तलाक का दाग नहीं लगवाना चाहते थे। वो तो पहले से ही चाहते थे कि तारा का घर बस जाए। उन्होंने सुल्तान को तारा को अपने साथ ले जाने की इजाजत दे दी। तारा ने तड़प कर अपने बाबा की तरफ देखा था। तारा, एक फैसला तुमने लिया था और आज एक फैसला मैं तुम्हारे लिए ले रहा हूं। अगर अपने बाबा पर यकीन है तो अपने घर चली जाओ। फराज साहब ने तारा के सर पर हाथ रखते हुए कहा था। तारा ने उनके फैसले पर सर झुका गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।